Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, 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 Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आज संडे से स्पेशल भी है, आज एकादशी स्पेशल भी है, आज सब कुछ है। जल्दी से तैयार हो जाइए प्रेयर्स के साथ, है ना। लेट्स स्टार्ट विद प्रेयर। जिन जिनको प्रेयर करना है कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बाय द वे, जो ट्यून अभी सुने थे वो ट्यून मैंने भी पहली बार सुनी थी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मैंने भी पहली बार सुनी थी। मैं कुछ नहीं किया। ओके, आशीषा माता की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। देखिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, एकादशी के दिन लेट मत ज्वाइन किया कीजिए। कुछ लोग अभी भी लेट ज्वाइन, गड़बड़ बात है। मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो मैं कान पकड़ के उठक बैठक सबसे करवाऊँ। अरे एकादशी के दिन एकादशी महिमा होती है ना। अगर हमने कोई कार्य नहीं किया, एकादशी की महिमा सुनी, तो अत्यंत लाभ होता है? भौतिक जगत का कुछ भी सुनते रहेंगे, हैं? एकादशी की महिमा नहीं सुनी। और भक्तों की जो कृपा मिलेगी, मेरा ये रिक्वेस्ट है, सभी जो भी हो, अपने जितने भी बच्चे हों, जो भी हैं, सबको ही को बुलाइए और सुनाया कीजिए। एकादशी की महिमा सुनाइए, कान में पड़नी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, बैठिए सुनिए। आप उनको जन्म जन्मांतर के संघर्ष से बचा सकते हैं पास टाइम सुना करके। बुलाइए, सभी को बुलाइए और बताइएगा, चैट में बताइएगा, आज मैंने अपने बेटे को भी सुनाया, बेटी को भी सुनाया, इसको भी सुनाया, इसको भी सुनाया। कोई अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, बुलाइए, सभी को बुलाइए। क्यों नहीं सुनेंगे? एकादशी के दिन सबको को जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए, दौड़ करके ज्वाइन करना चाहिए। क्या करते हैं? हरे कृष्ण। एकादशी की महिमा है, सभी को सुननी चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण। तमन्ना माता जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? म्यूट हो रहा है। नहीं, म्यूट कर, ओके ठीक। हम्म, ठीक है। सभी को रिक्वेस्ट कीजिए, लेट नहीं ज्वाइन करना चाहिए, पता नहीं क्यों। मानसी, गलती मत किया कीजिए, एकादशी के दिन गलती से भी लेट मत आया कीजिए। महिमा छूट जाती तो क्या होता? तो जी जन्म जन्मांतर के पाप बस एक महिमा सुनने से बच जाइए। क्यों लेट ज्वाइन कर रही है? कोई भी बड़ा बड़ा गलत है। मत लेट ज्वाइन किया कीजिए ना। आप क्या सोच रहे हैं, क्लास में ज्वाइन करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा? कभी भी ऐसा हुआ है क्या? सुन लिया कीजिए, जल्दी ज्वाइन किया कीजिए। बहुत लोग अभी भी नहीं ज्वाइन किया, अभी भी लेट ज्वाइन करेंगे, पता नहीं क्या है। जब भगवत धाम जाने का भी रास्ता खुलते रहेगा ना, तो लास्ट में सब पहुंचेंगे, है ना। सब दरवाजा बंद हो जाएगा, सब दरवाजा बंद हो जाएगा, उसके बाद नॉक करेंगे, अरे हमारे लिए खोल दीजिएगा, हम भी आए हैं, हम भी आए हैं, गेट खोलिएगा। हैं? ऐसा परिस्थिति क्यों ला रहे? समय सही है, और एकादशी के दिन बिल्कुल लेट। चलिए, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, जिन किन्हीं ने भी आज कीर्तन सुना होगा, वो कीर्तन सुन करके डांस करने लग जाऊंगा, उनका हृदय डांस जरूर किया होगा, अगर किन्हीं ने भी कीर्तन सुना हो। जबकि मेरे को खुद नहीं पता था कौन सा कीर्तन होने वाला है। समझिए ना, कृष्णा कृपा करते हैं, स्वीकार करेंगे बस। चलिए, कंटिन्यू करते हैं, है ना। सरिता माता जी, आप रीड करें। ऋचा माता जी मेरे को बता ऋचा माता जी मेरे को बता रही हैं कि उनके पास पोस्ट शायद पूरा कंप्लीट दिखता नहीं है, उनके फोन में नहीं दिखता ना, तो कोई इशू होता है। ठीक है, तो अगर इशू होए, बिल्कुल होगा, सभी के लिए होगा। मैंने नहीं किया, अब यही तो बता रहा था, मैंने भी कीर्तन पहली बार सुना। तो जब ऐसा है कि कृष्णा कृपा कर रहा है तो ठीक है ना, ठीक है।
अगर पोस्ट बीच में रुक जाता तो आप अपने मोबाइल से पढ़ने लगिए। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सरिता माता जी प्लीज। हरे कृष्ण। हम आज 19 मई 2024 को मोहिनी एकादशी मनाएंगे। सूर्य पुराण में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली मोहिनी एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मुझे बताइए कि वैशाख यानी अप्रैल मई के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दौरान होने वाली एकादशी का क्या नाम है। कृपया मुझे बताएं कि इस एकादशी के पालन से अत्यधिक पुण्य लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे परम कृपालु राजा, कृपया मुझे ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपसे एक वृत्तांत का वर्णन करता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने एक बार भगवान रामचंद्र को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र ने ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की, हे सम्मानित और ज्ञानी ऋषि, मैं सीता देवी का वियोग महसूस कर रहा हूँ तथा भीषण पीड़ा में हूँ। कृपया मुझे उस महान तथा कृपालु व्रत की व्याख्या करें जिसका मैं पालन कर सकता हूँ और जो सभी के पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं और कष्टों को कम करेगा। ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे भगवान राम, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान होने वाली एकादशी मोहिनी एकादशी के रूप में प्रसिद्ध है और सभी के लिए अत्यंत लाभकारक है। इस एकादशी का पालन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को वाणी और मन की शुद्धता प्राप्त होती है। कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि मैं इस अद्भुत एकादशी से संबंधित विषयों का वर्णन करता हूँ। एक बार भद्रावती नाम का एक अति सुंदर नगर था जो पवित्र सरस्वती नदी के तट पर स्थित था तथा जिस पर द्युतिमान नामक एक राजा का शासन था। हे भगवान राम, यह राजा चंद्र यानी चंद्रमा के वंश में पैदा हुआ था और वह सहिष्णु, सत्यवादी तथा सदैव प्रसन्न रहता था। धनपाल नामक एक धनपाल नामक भगवान विष्णु का एक शुद्ध और समृद्ध भक्त था जो उसी नगर में रहता था। वे व्यवसाय से वैश्य यानी व्यापारी समुदाय से थे। आम लोगों के लाभ के लिए इस भक्त धनपाल ने कई धर्मशालाएं, पाठशालाएं, भगवान विष्णु के मंदिर, धर्मार्थ अस्पताल, चौड़ी सड़कें और बाजार स्थल बनवाए। उन्होंने पानी और खाद्य सामग्री के वितरण की भी व्यवस्था की थी। उन्होंने पीने के ठंडे पानी के लिए कुएं और साफ पानी के लिए तालाब खुदवाए। उन्होंने फूलों और फलों के लिए उद्यान भी बनवाए। इस प्रकार उन्होंने अपने धन का सदुपयोग सबकी भलाई के लिए किया और इस प्रकार अपने नाम के सही अर्थ को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। भगवान विष्णु के इस पवित्र भक्त जो कि शांतिपूर्ण, सहिष्णु, दृढ़ संकल्प से पूर्ण थे और विष्णु की भक्ति सेवा में लगे रहते थे, उनके 5 पुत्र थे, समाना, धृतिमान, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि। उनका पुत्र दुष्ट बुद्धि परम पापी था। वह अत्यंत दुष्ट और बुरे स्वभाव का था, हमेशा बुरी संगत में लगा रहता था और अशुद्ध नारियों के साथ अवैध संबंध रखता था। वह अन्य जीवों का संहार करता था तथा यातना देता था। इस प्रकार वह सभी प्रकार के पाप कर्मों में लगा रहता था तथा एक शुद्ध एवं भाग्यशाली पिता के पुत्र ने अपने ही परिवार की संपत्ति को बर्बाद और अपनी जाति का अपमान करा अपमान अपमान करा दिए था। उन्होंने देवताओं, अतिथियों, अपने पूर्वजों तथा ब्राह्मणों के प्रति कभी सम्मान नहीं दिखाया। वह लगातार पाप कर्म करने की सोच में लगा रहता था और इस तरह एक तिरस्कारपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। दुष्ट अभागे ने अपने पिता की सारी संपत्ति का कई व्यर्थ गतिविधियों में दुरुपयोग किया। वह हमेशा निकृष्ट भोजन करता था और हमेशा मद्यपान में ही लीन रहता था। एक दिन अपने लज्जाहीन पुत्र को सार्वजनिक स्थान पर एक वेश्या के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए देखकर धनपाल अत्यंत आहत हो गया। उसी दिन वह जाति समाज और धर्मपरायण समुदाय में अपने पद से नीचे गिर गया और सभी के लिए घृणा का पात्र बन गया।
अपने पिता के घर से निकाले जाने के बाद दुष्ट बुद्धि ने स्वयं के वस्त्र और गहने बेचकर प्राप्त धन के साथ अपनी पापपूर्ण गतिविधियों को जारी रखा। जल्द ही वह सब भी समाप्त हो गया और धीरे-धीरे पर्याप्त भोजन की कमी के कारण उसका शरीर दुर्बल और कृपण हो गया। यह जानकर कि वह गरीब हो गया है, उसके उसके तथाकथित मित्रों ने उसे विभिन्न प्रकार से उसकी निंदा करते हुए उसे त्याग दिया। दुष्ट बुद्धि अब चिंतित हो गया था, उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे तथा उसका मन अत्यंत भयानक रूप से अशांत था। वह क्षुधा से तड़प उठा। वह सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कहाँ जाना चाहिए और मैं कैसे जीवन यापन करूँगा? इस प्रकार ध्यान करने के बाद उसने निश्चय किया कि उसकी जीविका कमाने के लिए चोरी करने के सिवा और कोई साधन नहीं है, इसलिए चोरी करने की इच्छा में से वह भद्रावती शहर में घूमता रहा। कभी-कभी राजा के पहरेदार उसे गिरफ्तार कर लेते थे, लेकिन उसके पिता की महानता का ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद उसे छोड़ देते थे। कई बार इस तरह से पकड़े जाने और रिहा होने के बाद उसे एक विशेष प्रकार की चोरी करने के आरोप में एक बार फिर औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे फिर से राजा के पास ले जाया गया, जहाँ उसे कड़ी सजा दी गई। राजा ने कहा, हे पापी मूर्ख प्राणी, तुम इस राज्य में अब और अभी नहीं रह सकते, क्योंकि तुम महापापी हो। मैं तुम्हें अभी के लिए रिहा कर रहा हूँ, लेकिन तुम इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। दुष्ट बुद्धि ने फिर से दंडित होने के डर से राज्य छोड़ दिया। वह बहुत दूर निकल गया और उसने घने जंगल में प्रवेश किया। वहाँ बेल और लताएं थी तथा ऊंचे ऊंचे पेड़ भी थे। जंगल में वह भूख प्यास से इतना ग्रसित हो गया कि उसने अंधाधुंध पशु पक्षियों को मारना प्रारंभ किया। कई वर्षों तक वह एक शिकारी की तरह पूरे जंगल में भटकता रहा, हाथों में धनुष और बाण लिए निर्दोष जानवरों का संहार करता रहा और पापी गतिविधियों में लिप्त रहा। दुष्ट बुद्धि हमेशा दुखी और चिंतित रहता था, लेकिन एक दिन कुछ पूर्व पवित्र कर्मों के कारण वह महान ऋषि और तपस्वी कौंडिन्य के पवित्र आश्रम में या फिर मैं शेयर मैं करता हूँ। कोई और शेयर कर सकते हैं क्या? ग्रुप में देख रही प्रभु जी मैं। आई थिंक आश्लेषा माता जी शेयर कर देंगे। आई थिंक ओके। मेरे को मालूम। एक्चुअली मैं आजकल इन 2 लॉगिन अलाउ नहीं कर रहा। अच्छा, जो होस्ट है ना उसका 2 लॉगिन अलाउ नहीं कर रहा। ओके, यस, थैंक यू सो मच माता जी। हाँ, कहाँ पे रुकते रहते? सरिता में। ओके, ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, दृष्ट बुद्धि हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। प्लीज स्टार्ट करें सरिता माता। सरिता माता जी दिख अरे रहा है क्या? हाँ, हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही प्रभु जी मुझे। अच्छा, आपको नहीं दिख रही? नहीं। आश्लेषा माता जी एक काम करें, आप ही रीड करें। हाँ दिख रही है, कोई बात। आश्लेषा माता जी दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, आप प्लीज रीड करें। हरे कृष्णा गुरु जी। दृ- हरे कृष्णा। दुष्ट बुद्धि हमेशा दुखी और चिंतित रहता था, लेकिन एक दिन कुछ पवित्र कर्मों के कारण वह महान ऋषि और तपस्वी कौंडिन्य के पवित्र आश्रम में पहुंचा। वैशाख यानी अप्रैल मई का महीना था और महान ऋषि कौंडिन्य गंगा में स्नान करके घर लौट रहे थे। उस समय दुष्ट बुद्धि, जो संकट और विलाप से बहुत व्यथित था, ऋषि के वस्त्रों से गिरने वाले पानी की एक बूंद उसे छू गई। दुष्ट बुद्धि को
उसकी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से तुरंत राहत मिली। हाथ जोड़कर और बड़ी विनम्रता से उसने कौंडिन्य ऋषि से कहा, हे महान ब्राह्मण, मैं अत्यंत पापी व्यक्ति हूँ। ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। अब कृपया मुझे एक सर्वोच्च प्रकार के प्रायश्चित के बारे में निर्देश दे, जो मेरे जैसा मनहूस व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अब तक के अपार पाप कर्मों के फलस्वरूप मुझे अपना घर, धन, संपत्ति और मित्र प्राप्त नहीं हुए। मैं मानसिक पीड़ा के सागर में डूब रहा हूँ। धृष्ट बुद्धि के इन कथनों को सुनकर महान ऋषि कौंडिन्य ने कहा, मैं तुम्हें एक उत्कृष्ट विधि बता रहा हूँ, जिसके द्वारा तुम्हारी सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं को बहुत ही कम अवधि में आसानी से खंडित किया जा सकता है। मोहिनी एकादशी, जो वैशाख यानी अप्रैल मई के महीने में शुक्ल पक्ष में आती है, सुमेरु पर्वत जैसे पहाड़ जो कई जन्मों से एकत्रित हुई पापी प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इसलिए तुम्हें इस एकादशी का निष्ठा से पालन करना चाहिए। महान ऋषि के इन शब्दों को सुनकर धृष्ट बुद्धि हर्षित हो गया और उसने एकादशी का व्रत ऋषि द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार पालन किया। हे श्रेष्ठ राजा, इस मोहिनी एकादशी का पालन करने से अत्यंत पापी धृष्ट बुद्धि जल्द ही सभी पापों से रहित हो गया और एक दिव्य शरीर धारण करने के बाद वह गरुड़ की पीठ पर सवार होकर भगवान विष्णु के सर्व शुभ धाम में लौट गया। हे रामचंद्र, यह व्रत निश्चित रूप से सभी प्रकार के भ्रम और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। पवित्र जल में स्नान करने, दान देने और यज्ञ करने से भी जो पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती है, वो पुण्य इस मोहिनी एकादशी का पालन करने से प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा बारंबार रिक्वेस्ट यही रहता है, एकादशी के दिन कोई भी गलती से भी लेट ज्वाइन ना करे। बहुत बहुत अच्छी बात है कि सब कोई एकादशी की महिमा सुनते हैं। आज संडे भी है, तो संडे स्पेशल भी होगा, है ना। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट बात समझेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो बात भी समझने का प्रयास करेंगे। परंतु हर किसी को एकादशी की महिमा सुनानी चाहिए। ठीक है, बहुत बार क्या होगा, बहुत बार समझ में नहीं आएगा, बहुत बार होगा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया ना तो भी कोई बात नहीं, कोशिश किया कीजिए, सभी को सुनाने का कोशिश किया कीजिए। अगर नहीं भी समझ में आया तब भी कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। और संडे स्पेशल हर बार जैसे होता है, बहुत बार बोलते नहीं है डायरेक्टली, बहुत बार साफ साफ बोल देते हैं। अगर किन्हीं को भी कोई ऐसा टॉपिक लगे कि वो टॉपिक लेना चाहिए, कोई भी टॉपिक आप रख सकते हैं, है ना, तो पहले वो टॉपिक ले लें। किन्हीं को भी ऐसा लगे कि ये बात करेंगे तो हमारी भक्ति और दृढ़ हो जाएगी, आप वो बात बोल दीजिए, मैं वो बात पे बात करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोई टाइम नहीं चाहिए, है ना। मैं उसी जो भी आपका टॉपिक होगा मैं वो एक्सप्लेन करने के लिए वो बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई कष्ट लग रहा हो, इस जगत में रह करके ये कष्ट है और इस कष्ट के कारण हम भक्ति नहीं कर पा रहे, कृपया वो बता दीजिए, हम वो बात पे बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए इन सबको बोलते हुए, हाँ, जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया, आप लोग डिसाइड करें तो ग्रुप पे बता दें, आप लोग डिसाइड करें तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दें। चलिए, मैंने डिसाइड किया, एक्चुअली मैं ये डिसाइड कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के ही शब्दों से है। आज उनके शब्द फिर से सुन रहे थे। एकादशी के दिन हमेशा कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के ही शब्द टेम्पल में सुनाए जाते हैं।
आप लोग जब दर्शन हो रहा था तो उस समय भी मैंने साफ साफ आज बोल दिया था, मैं कृष्णा बलराम के सामने तो बैठा हूँ, परंतु अभी दर्शन नहीं कराऊंगा, है ना। दूर से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बस उतना ही ठीक, उठ करके अभी दर्शन नहीं कराएंगे। आप लोगों को चैंटिंग करनी है आपकी, आप लोग चैंटिंग कीजिए, परंतु मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप समझिए। पहले सेकंड टॉपिक ले लेते हैं। आप समझिए, मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का उचित सम्मान करूं। देखिए, हमेशा गुरु का उचित सम्मान होना ही चाहिए, गुरु का उचित सम्मान होना ही चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति, गुरु का उचित सम्मान होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हटा दीजिए। आपके पास लाखों कार्य होंगे, परंतु अगर गुरु का सम्मान करने का अवसर आ जाए तो पहले गुरु का सम्मान करेंगे, बाद में कोई कार्य करेंगे। गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए, है? मैंने तो प्रॉमिस किया कि दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे, दर्शन करा रहे थे। आज एकादशी थी, 9 बजे तक दर्शन करा, नहीं करा। क्यों? कृष्ण के मूर्ति श्रील प्रभुपाद से ज्यादा important है, उनके शब्दों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको सम्मान करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कोई? नहीं। मंदिर में तो था, और मतलब इतना ही दूर था कि आप बोल रहे हैं तो कृष्णा बलराम तक तो आवाज जा रही, परंतु फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गुरु का उचित सम्मान सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो सांस लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। तो देखिए, हाँ, होता कैसा है, गुरु का जो पद होता है ना, वो बहुत चैलेंजिंग होता है, वो बहुत मुश्किल पद है। गुरु कोई भी बात ऐसी नहीं बोल सकते जो शास्त्र के विपरीत हो। अब आप लोग स्वयं भी देखते होंगे कि शास्त्र के विपरीत जाकर के भी शास्त्र की ही बात बोलते हैं। तो किस प्रकार से कार्य करें? कोई अगर बातों को गलत ढंग से समझ ले, देखिए दो अलग अलग बातें। पहला, कोई अपनी समझदारी के कारण ना समझ पाए तो गलती इसमें गुरु की नहीं है, परंतु गुरु फिर भी अपने आप ही को दोषी जानते हैं। समय काल और परिस्थिति के अनुसार हमको बातें करनी होती है। अगला जो सामने खड़ा है वो बड़ा मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। अगर मैं गुरु के पद पे हूं तो मेरे को उसी प्रकार समझाना चाहिए कि एक मूर्ख को समझना। अगर एक गुरु समझा रहा है, मूर्ख सामने है और वो बुद्धिमान की तरह समझा रहा है और वो मूर्ख नहीं समझ पाया, तो इसमें गलती गुरु की नहीं है, परंतु गुरु फिर भी अपनी गलती ढूंढे। मैंने ही अच्छे से नहीं समझाया होगा, मैंने ही नहीं समझाया, और मैं समझा देता तो सुन लेता, स्वीकार कर ले, मेरी गलती हुई है ना। तो आज या कल कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे, भक्त जो होते हैं वो हमेशा
सभी पे करुणा रखते हैं, सभी पे करुणा रखते हैं। परंतु ये स्वाभाविक है कि कोई भक्ति कर रहा होगा, लोग उससे द्वेष रखेंगे, ये स्वाभाविक, लोग द्वेष रखेंगे। हम तो भक्ति कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो द्वेष कर रहे हैं, यही स्थिति। तो देखिए, हम सभी को गुरु का उचित सम्मान हमेशा हर पल करना चाहिए। कभी क्लास में बताया गया, देखिए समझिए, गुरु का हृदय समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया। अब अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो बिल्कुल बीच में पूछ लीजिएगा या बाद में पूछ लीजिएगा, परंतु गलत मत समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, गलत मत समझिए, भाई एनी चांस कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूज मत रहिए, ठीक, कोशिश कीजिए। ओके, अगर हमें मौका मिल जाए, मौका मिल जाए कि गुरु की बात स्वीकारनी है या पूर्ववर्ती आचार्यों की बात स्वीकारनी है, हमारे जो इमीडिएट गुरु हैं उनकी बात स्वीकारनी है या पूर्ववर्ती आचार्य की बात स्वीकारनी है, तो हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं, हमको बस अपने गुरु की बात स्वीकार, पूर्ववर्ती आचार्य की बात नहीं स्वीकार। अगर दोनों बात कट रही हो, लगे कि पूर्ववर्ती आचार्य की जो बात है ना, उनके विपरीत बोल रहे हैं हमारे गुरु, ऐसा लगे, उस स्थिति में क्या करना है, हमें पूर्ववर्ती आचार्य की बात नहीं स्वीकारनी, हमें इमीडिएट गुरु की बात स्वीकारनी। इसीलिए बोलता गुरु मुखा पद्म वाक्य। कोई अगर गुरु से पीछे करके, देखिए इस बात को समझिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इसलिए कॉन्फ्लिक्टिंग, परंतु समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। कोई अगर गुरु से मुड़ कर बोले कि पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनसे ज्यादा शुद्ध हैं क्या हमारे गुरु, तो हम पूर्ववर्ती आचार्य के बाद, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 6 गोस्वामी, षड गोस्वामी, गोस्वामी ने कोई बात बोली, आपकी समझदारी के मुताबिक, मैं आंसर अभी रिवील कर दिया, आपकी समझदारी के मुताबिक, आपकी समझदारी के अनुसार गुरु के जो शब्द हैं वो गोस्वामी के शब्द के विपरीत, आप किनकी बात सुनिएगा, गुरु के कि गोस्वामी के? आपके जो गुरु हैं उनके शब्द गोस्वामी के शब्द के विपरीत, गुरु जेन्युइन, कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद आज भी बोल रहे थे, गुरु की बोनाफाइड, गुरु जेन्युइन, हम क्या करेंगे, गोस्वामी के शब्द समझेंगे, गोस्वामी के शब्द स्वीकारेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझिए, देखिए पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो भी बोला होगा वो एक हृदय से बोला होगा, उसके पीछे कोई कारण रहा होगा बोलने का, और गुरु बता रहे हैं तो अभी की परिस्थिति, अभी की स्थिति के अनुसार बता रहे हैं, अभी की स्थिति के अनुसार बता रहे हैं। आपको पूर्ववर्ती स्थिति के अनुसार आंसर चाहिए कि अभी की स्थिति के अनुसार आंसर चाहिए? मैं आपको एक एग्जांपल, ये कॉन्फ्लिक्ट मत समझिए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने बोला कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा
तो वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय होगा। अब बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा? बुक में जो लिखी गई बात है, वही बात तो सब तक पहुंचेगी ना, वही बात पहुंचेगी ना। अगर सपोज कीजिए उनके बाद कोई इस बात को बोले कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, आप तो आ, मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, अपने लिए नहीं बोल रहा, एक एग्जांपल बोल रहा। आप तो ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट कीजिए, बुक से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट कीजिए। तो ऐसा लग सकता है कि पूर्ववर्ती आचार्य के विपरीत है ये बात, परंतु ऐसा हो सकता है कि गुरु ये बात को देख रहे हैं कि पूर्ववर्ती आचार्य का हृदय यही था कि उनके शब्द पहुंचे, गुरु यही कर रहे हैं कि उनके शब्दों को ही पहुंचा रहे है ना। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख सकता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, आपके समझ के अनुसार कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। अगर कोई अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित है तो कॉन्फ्लिक्ट नाम का चीज हो ही नहीं सकता। कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, आपको एक सीक्रेट बता रहे, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भौतिकता से कॉन्फ्लिक्ट होता है, भौतिक प्रकृति से कॉन्फ्लिक्ट होता है। आध्यात्मिक प्रकृति से क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा? वो भी प्रेम प्रसार चाहते हैं, ये भी प्रेम प्रसार चाहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट किस बात का कॉन्फ्लिक्ट? कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो भौतिक प्रकृति के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। आज की नहीं से बात हो रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट। वो बोल रहे हैं कि मैं तो भक्तों से बात करता हूं, मैं तो हमेशा भक्तों के बीच जाकर के बात करता हूं। प्लीज समझिए, मैंने बोला असत्संग को त्यागना है, असत्संग को त्यागना है। वो मेरे से कुछ जानना चाह रहे थे, मैंने यही बोला असत्संग को त्यागना है। असत जो सही नहीं है उस संग को त्यागना। बहुत अच्छा। उन्होंने बोला असत संग तो हम करते ही नहीं, हम तो वैष्णव संग करते हैं, हम तो भक्तों का संग करते हैं। अब क्या भक्तों के संग को भी त्यागा जाए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हम भक्तों के बीच पहुंच तो गए हैं, परंतु भक्तों के बीच पहुंचने के बाद क्या कर रहे हैं? हम प्रजल्पा कर रहे हैं, हम भौतिक बातें कर रहे हैं, भौतिक जगत की बातें कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति की बातें कर रहे हैं, भक्तों के बीच जाकर के भौतिक प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में डबल अपराध कर रहे हैं। पहला तो उस भक्त में जो एक भौतिक स्तर होगा, जब तक कोई नित्य सिद्ध नहीं है तब तक उसमें कोई भौतिकता का भी स्तर होगा, थोड़ा सा होगा। हम उस भौतिकता के स्तर से जाकर के बात कर रहे हैं, हम तो भौतिकता का प्रचार कर रहे हैं। और दूसरा, वो जो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है या भक्त है, उसका समय आध्यात्मिक कार्यों में इस्तेमाल हो सकता है। हमने क्या किया? हमने उसको भौतिकता में लगा दिया, डबल अपराध। आप ये मत समझिएगा भक्तों का संग कर रहे हैं तो हम अच्छा ही करेंगे, बिल्कुल मत समझिएगा, बिल्कुल नहीं। ये डेफिनेटली इंस्ट्रक्शन है कि भक्तों का संग करना है, परंतु बस मात्र भक्तों का संग करने से सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर भी बात, भक्तों के बीच जा रहे हैं, भौतिकता की बात कर रहे हैं, करते हैं ना लोग, करते हैं ना? यस नो? ऐसा आपने किया नहीं किया? भक्तों से तो बात की है, परंतु अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, ये उसका इसका उसका बात कर रहे हैं, किया नहीं किया? सच बताइए, कभी भी एक बार भी किया नहीं किया? यस, सच सच बोलिए, झूठ नहीं। कभी भी कोई भी भक्त मिले हो, कभी भी कोई भी भक्त, उनसे अपने भौतिकता की बात कर ली है, मौसम कैसा चल रहा है और ये कैसा है, वो कैसा है ना? ये तो भौतिक प्रकृति है। आप उनको भक्ति से दूर करो, भक्ति से दूर करो, आप अपना समय बर्बाद करो।
ठीक है, जरूरी नहीं है सत्संग त्याग बोलना है तो आ, अभक्तों का संग करेंगे तभी गड़बड़ होगा। भक्तों का संग करके भी गड़बड़ करते हैं और उल्टे बड़ा गड़बड़ कर देते हैं, बड़ा अपराध कर देते हैं। तो इससे बचना है, ठीक है। चलिए, पहले दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक पे और बातें करेंगे तो और बातें होती चली जाएगी। दूसरा टॉपिक बड़ा हृदय को छूने वाला है, किन्हीं को चोट भी पहुंच सकती है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी को चोट भी पहुंच सकती है, ठीक है। तो किन्हीं को चोट लगे तो प्लीज समझिए, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि आपको चोट लगे, मेरा लक्ष्य ये है कि हम आपको सत्य बताएं। सत्य बताऊं क्यों? आप सत्य को स्वीकार करके फिर और दृढ़ता से भक्ति कीजिए। देखिए, लोग क्या करते हैं, लोग विग्रह की सेवा करते हैं, है ना, लोग विग्रह के प्रति समर्पित होते हैं, विग्रह ही उनके लिए सब कुछ होते हैं। किन्हीं को तो ये बोल दिया कि आप विग्रह सेवा करती हैं, तो ऑफेंड हो गई थी माता जी। एक माता जी को कभी बोल दिया था, आप विग्रह सेवा करती हैं, तो माता जी बोलती हैं विग्रह मत बोलिए, वो लाडली है मेरी, विग्रह मत बोलिए। भाव बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाव, कोई कोई गलत भाव, बहुत अच्छा। परंतु समझिए, अगर विग्रह, प्लीज, क्योंकि फिर नहीं, अगर विग्रह नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वो माता का तो भाव बहुत अच्छा था, अब अगर मैं लाडली बोलने लग गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। मैं गौर नेताई बोलने लग गया, अब गौर नेताई कौन वाले गौर नेताई? विग्रह वाले, रियल वाले। रियल मतलब पर्सनल, पर्सनली आए, पर्सनल फीचर में आए, कौन? तो होता कैसा है कि हम लोग विग्रह की सेवा करते हैं और विग्रह को ही सर्वस्व समझते हैं, कोई गलत बात नहीं, विग्रह को ही सर्वस्व समझते हैं, एकदम सही है। परंतु अगर विग्रह ही, श्री विग्रह ही भगवान है, क्योंकि है, इसमें कोई सेकंड थॉट थोड़ी ना, तो फिर हम भगवत धाम क्यों जाए? हमारे पास तो भगवान साहब बगल में, हम भगवत धाम क्यों जाए? यस, कोई आंसर करेंगे? हरे कृष्ण। श्री विग्रह ही भगवान है, तो भगवत धाम जाकर के क्या करेंगे? तो भगवान स्वयं। जब मैं अगर बोल रहा हूं, वो अगर एक्चुअली में अगर नहीं है, वो सच है, बताइए, फिर भगवत धाम जाकर के क्या करना? हमारे पास तो भगवान स्वयं। यस, सोच के बताइए, देखिए कितनी बड़ी, कितनी छोटी सी बात लग रही है, कितनी विशाल बात है ना। जब हमारे पास हमेशा ही विग्रह है, उनकी सेवा कर ही रहे हैं, सुबह से रात तक हम उन्हीं के प्रति हैं, हमारा हृदय उनके ही लिए धड़क रहा है, हम भगवत धाम जाकर के क्या करेंगे? उसी का एक और रूपांतर है, सेम सेम बात बोल रहा हूं। कृष्णा का धाम और कृष्णा अलग नहीं है, और वृंदावन धाम में तो रहने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। अब जब वृंदावन धाम में स्वयं है, तो हम गोलोक वृंदावन में क्यों जाए? हम वृंदावन धाम में, हम गोलोक वृंदावन क्यों जाएंगे? यहीं पर है।
हरे कृष्णा। सेम है, सेम बात बोला है, कुछ और डिफरेंट नहीं बोला। बहुत बड़ी बड़ी बात लग रही है हैं? आप लोगों ने पढ़ा है, देवी देवता भी तरसते हैं वृंदावन में रहने को। वृंदावन में रह, हम गोलोक वृंदावन क्यों जाए? यस, कोई आंसर करेंगे जल्दी? हरे कृष्णा। अगर किन्हीं के पास आंसर नहीं है तो नो आंसर भी लिखिए, एन ए लिख दीजिए, एन ए। नॉट एप्लीकेबल नहीं, नो आंसर। हाँ, एन ए नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल के लिए यूज किया जाए। हाँ, बताइए बताइए ऋतु माता जी, हरे कृष्णा, बताइए बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ गोलोक वृंदावन धाम से फिर हम वापस नहीं आएंगे और फिर वृंदावन धाम से तो वापस घर हाँ, जाना पड़ता है। नहीं क्यों जाना पड़ता है? आप आ जाइए, फिर मत जाइए। नहीं भगवान बहुत सारे विदेशों से लोग छोड़ करके आ जाते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं। हम लोग एक्चुअली में मालूम है क्या, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, कोई अन्यथा मत लीजिएगा प्लीज, फिर से हाथ जोड़ करके विनती, आप बुरा मत मानिए। हम लोग अपने अनर्थों के कारण, और अनर्थ हो सकता है बहुत पहले पहले का अनर्थ, हम अपने अनर्थों के कारण वृंदावन धाम में नहीं तो कोई भी वृंदावन धाम, जिसका भी हृदय है कृष्णा के घर पे, वृंदावन धाम में हो सकता है। हमारे अनर्थ है, अब देखिए सभी के लिए तो अनर्थ है, परंतु गुरु या भगवत प्रचार करने वाले, गुरु की आज्ञा अनुसार भगवत प्रचार करने वाले, वो तो कहीं पे भी जाकर के प्रचार करने के लिए तैयार, नरक में भी जाकर के प्रचार करने के लिए। परंतु आप समझिए बाकी लोगों के लिए तो बस इतना ही है, हमारे अनर्थ है उसके कारण हम वृंदावन में। आप तो कभी भी वृंदावन आ सकते, कौन नहीं आ सकता? आप में से कौन नहीं आ सकता? आपके खुद ने आपने अभी पहले और पहले ऐसे वैसे करके अनर्थ को इकट्ठा कर रखा, उसके कारण नहीं। अनर्थ को हटा दीजिए, अभी धाम आ जाइए, सबको याद। हमेशा कृष्णा का चिंतन कृष्ण हृदय में होता है, यहाँ पे आकर के भी वही काम करिए। बोले धन संपदा नहीं है, ये स्थिति नहीं है, वो सब स्थिति बन जाएगी। अनर्थ अनर्थ है, उसी कारण तो स्थिति नहीं बन रही ना। हमने पाप कर्म कर रखे हैं, उसी कारण तो स्थिति नहीं बन, है ना? तो वापस आने का जरूरी नहीं है। हाँ, चलिए बाकी बाकी आंसर लेते हैं। फिर लड्डू गोपाल वाला बता दीजिए, या विग्रह सेवा वाला बता दीजिए कि विग्रह सेवा कर रहे हैं तो फिर गोलोक वृंदावन जाकर के क्या करेंगे, भगवत धाम जाकर के क्या करेंगे? चलिए प्लीज कोई बुरा मत माना कीजिए, बुरा मानिए मुंह पे बोल दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बुरा मत। चलिए, क्योंकि ये माया का जगत है और हम माया में फंस जाते हैं। हाँ, लेकिन कृष्णा के धाम गोलोक धाम में सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। अब देखिए, जब आपने ऐसा बोला कि गोलोक धाम में, वृंदावन धाम में गोलोक धाम से कोई अलग है क्या? वृंदावन धाम गोलोक धाम से अलग है क्या? जब हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से कृष्णा की सेवा करने से अलग है क्या? अलग है, दोनों सेम चीज है, पैरेलली लेके चल रहा हूं क्योंकि दोनों का सेम आंसर है। अलग है क्या? नहीं है ना। तो हाँ, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है, बिल्कुल आप बात बिल्कुल सही बोल रही हैं, आप बात गलत नहीं बोल रही हैं, परंतु आप समझिए जब हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं, वो स्वयं कृष्णा की सेवा, उससे अलग नहीं। प्राण प्रतिष्ठा, प्राण कृष्णा के प्राण, और जो विग्रह की सेवा करते होंगे देखते होंगे कृष्णा तरह तरह से रेसिप्रोकेट करते। यस, हम शुद्ध होकर के गोलोक या पर तो मलिनता है। ओके, यहाँ पर तो मलिनता। ओके ठीक, बात तो सही है। गुरु के रागानुगा भक्ति से प्राप्त होने वाले विग्रह हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हमारे पास जिस विग्रह की सेवा करते हैं। आपकी सही बात। चलिए, गुरु द्वारा जो प्रदत्त है, जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति सुंदर प्रभुपाद द्वारा प्रदत्त है ना, आजकल हम लोग दर्शन भी कर लेते हैं, कृष्णा बलराम है, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा है, गौर निताई, उनके द्वारा प्रदत्त है। अब उनका महिमा ज्यादा होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा, एकदम सही बात बोली।
परंतु जब वो हमारे पास नहीं है, हमको गोलोक धाम जाने का क्या आवश्यकता है? तो हमारे पास आंखों के सामने डेली दर्शन कर रहे हैं, तो फिर गोलोक वृंदावन क्यों जाना? क्यों जाना? हम्म? गुरु की इच्छा है कि वैसा करें, करने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर। गुरु की इच्छा है तो करें। चलिए, कल से तो क्लास एक्सटेंड हो रही है, आज भी थोड़ा एक्सटेंड करने दीजिए। आज वाला काउंट नहीं करेंगे, आज वाला काउंट नहीं करेंगे। कल से क्लास 10:15 तक होगी। ठीक है, जितना अभी तक मेरे को पोल से पता चला, आप लोग ही डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। कल से क्लास 9:30 बजे स्टार्ट होगी, 9:30 पे स्टार्ट होगी। ठीक है, एक काम कीजिएगा, सारे ग्रुप में मैसेज अभी भेज दीजिएगा। हमारा घर गोलोक है, इसलिए ठीक है। अभी थोड़ा सा एक्सटेंड करने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीवन भर हम लोग यही करते हैं, हम लोग विग्रह की सेवा करते हैं और सोचते हैं विग्रह ही सब कुछ है भी। अब फिर सोचते हैं गोलोक जाएंगे, क्यों जाएंगे? अब विग्रह की सेवा कर रहे हैं, विग्रह ही सब कुछ है, गोलोक क्यों जाएंगे? यहीं पे सब कुछ कर रहे हैं ना, इस भौतिक जगत में ही कृष्णा की सेवा कर रहे हैं ना, तो फिर गोलोक क्यों जाएंगे? देखिए आंसर, देखिए बहुत अच्छा है, आप लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा है, इसमें कोई 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 बुराई नहीं है, कोई कोई गलत बात नहीं। परंतु देखिए, स्पष्ट रूप से आंसर हम लोगों को पता होना, स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए क्यों, क्या कारण। देखिए यहाँ पे जो कृष्णा है ना, यहाँ पे जो विग्रह है ना, वो रेसिप्रोकेट तो करते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, तो कृष्णा ही, पर बहुत ज्यादा रेसिप्रोकेट नहीं करते। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद आज ही क्लास में बोल रहे थे, बहुत सारे विग्रह हैं जो बातें भी करते हैं, बहुत सारे विग्रह हैं जो चलते भी हैं? साक्षी गोपाल बातें करते, चलते भी, बहुत सारे विग्रह, बहुत सारे विग्रह रेसिप्रोकेट करते हैं, पर उस प्रकार से पर्सनली रेसिप्रोकेट नहीं करते, उतना रेसिप्रोकेट नहीं करते। हमको तो बहुत सारी बातें करनी है ना, है? कभी कदार थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हमको तो हर मिनट बात करनी है उनसे। थोड़ा सा बात करके हमारा काम थोड़ी ना चलता है ना, चलता है क्या? थोड़ी देर कृष्णा बात कर लें तो चलता है क्या? विग्रह अगर रेसिप्रोकेट भी करता है तो थोड़ी सी देर करता है, एकदम थोड़ी सी देर करता है, सही है ना? है, थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ दिखाते हैं ना, एकदम थोड़ा सा, हर पल तो नहीं रेसिप्रोकेट करते हैं, ऑल्दो करते हैं पर हमको दिखाई नहीं देता, है ना? पर्सनली हम विग्रह से कनेक्ट तो कर जाते हैं, परंतु पूर्ण रूप से रेसिप्रोकेशन उनका देख नहीं पाते। सच है नहीं है? यस नो? हरे कृष्णा, सही बात है, सभी को समझ में आ रहा है? हम लोगों को तो कृष्णा से परस्पर पर्सनली प्रेम का आदान प्रदान चाहिए, है ना? तो उसके लिए तो कृष्णा को ज्यादा रेसिप्रोकेट करना चाहिए, है ना? हाँ, इसीलिए यहाँ के कृष्णा और वहां के कृष्णा में कोई भिन्न नहीं है, कोई फर्क नहीं है, परंतु हमको तो ज्यादा रेसिप्रोकेट करना है ना, हमको तो ज्यादा रेसिप्रोकेट करना है। हम उनके चरणों का आलिंगन करना चाहते हैं? हम चरणों का कैसे आलिंगन करें? हम तो उनसे खेलना चाहते हैं, हम कैसे खेलें? हैं? उनसे तो खेलते ही नहीं। हम उनके साथ नृत्य करना चाहते हैं, कैसे करें? कभी कभी रेसिप्रोकेट करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। हम उनसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, है ना? हम उनसे बहुत सारा प्रेम व्यापार करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं।
प्लीज इस बात को एकदम क्लियरली समझिए, ऐसा नहीं है नहीं करते, करते हैं, परंतु बहुत सारा तो नहीं करते हैं, एकदम थोड़ा सा करते हैं ना। हम्म, थोड़ा सा करते हैं ना। यस, सभी को समझ में आ रहा है? हमको थोड़ा सा में कैसे काम चलेगा? है? इसीलिए इसीलिए बोलता है विकृत प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब तो है परंतु विकृत है, थोड़ा सा दिख रहा है, ज्यादा नहीं दिख रहा है ना। तो हमको संपूर्ण चाहिए, हमको संपूर्ण चाहिए, पूर्ण रूप से रेसिप्रोकेशन चाहिए। वो रेसिप्रोकेट कर रहे, हम नहीं देख पा रहे, पूर्ण इंद्रियों के कारण नहीं देख पा रहे, हमको पूर्ण रूप से देखना। और पूर्ण रूप से प्रेम को अनुभव करने के लिए उनके आध्यात्मिक लोक में हमको रहना हो। ठीक है, इसीलिए विग्रह कृष्णा है, विग्रह जो है वो स्वयं कृष्ण है, विग्रह जो है वो स्वयं राधा रानी है, परंतु हमको रेसिप्रोकेट तो हमको ज्यादा चाहिए है, ज्यादा चाहिए। चीनी का एक दाना भी चीनी है, परंतु उससे क्या भूख मिट जाएगी क्या हमारी? है, बोले मीठा खाने का मन कर रहा है, हमको एक दाना चीनी का दे दिया, आनंद आएगा? है, एक दाना चीनी का मिल गया, हम बोलेंगे दिया भी क्यों? है ना। हाँ, ऐसे ही भौतिक जगत में ऐसे ही बोलते हैं ना, वो दिया भी क्यों? हाँ, राजस्थान के साइड ऐसा बोलते हैं, मुंह भी झूठा कर दिया, मुंह में कुछ खिलाया तो मुंह भी झूठा कर दिया और कुछ फायदा भी नहीं हुआ, है ना। तो अगर हमको कृष्णा एकदम थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करें, हम उससे संतुष्ट नहीं है, हमको उतना से नहीं चलेगा। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे अच्छा वही है, पूरे विश्व में सबसे अच्छा विग्रही है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं, परंतु हमको इससे भी नहीं चलेगा, हमको इससे भी ऊंचा चाहिए, हमको इससे भी ऊंचा चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से कृष्णा और कृष्णा के शब्द अलग नहीं, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कृष्णा ही है, कृष्णा ही है, कृष्णा का प्रसाद पा रहे हैं, कृष्णा ही है, परंतु इससे बहुत ज्यादा हम अनुभव नहीं कर पा रहे, हमको टेस्ट नहीं आ रहा, हमको स्वाद नहीं आ रहा, हमको एक दाना चीनी का खा करके स्वाद नहीं आ रहा, हम इतना से काम नहीं चलेगा, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, संपूर्ण चाहिए, पूर्ण चाहिए, चाहिए। अब इसके लिए गोलोक वृंदावन चलना पड़ेगा। अभी हाँ, चैतन्य चैतामृत क्लास में भी एंड यहीं पे हुआ था, एकादशी है ना, कुछ तो स्पेशल होगा, तो उस क्लास में भी यही बोल रहा था, चाहिए ना आपको? हैं, ये चाहिए ना पूर्ण रूप से? हैं, पूर्ण रूप से चाहिए ना? चाहिए, चलिए पैकिंग स्टार्ट कीजिए, पैकिंग स्टार्ट कीजिए। वहां पे भी एग्जाम्पल दिए थे, वहां के लोग थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए, सेम एग्जाम्पल को रिपीट कर रहे हैं, सेम तरीके से रिपीट कर रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग पहली बार कभी फ्लाइट में चढ़ रहे थे तो हम लोग इंस्ट्रक्शन का फॉलो करते हैं, है ना, जो बोला जाता है हम उसको फॉलो करते हैं। तो बोलता है कि पहले एंट्री गेट से सिक्योरिटी पास, सिक्योरिटी चेक करवा करके एंट्री कर लीजिए, गार्ड जैसा कोई होता है पुलिस में, चेक करके हमको अंदर लेता है। ठीक है, हम उनको पासपोर्ट दिखाएंगे, कुछ भी दिखाएंगे, अंदर एंट्री हो जाती है, बहुत अच्छा। फिर बोला जाता है लगेज को यहाँ पे दे दीजिए, फिर बोलता है सिक्योरिटी चेक करवा लीजिए, फिर सिक्योरिटी चेक में भी जो सामान अगर नहीं खाने का होता है, कुछ भी होता है तो फेंकवा भी देता है, खाने के लिए बोलता है, अभी खा लीजिए। पानी भी बहुत जगह, बहुत एयरपोर्ट पे ऐसा भी होता है, पानी भी होता है तो बोलता है पानी पी लीजिए या फेंक दीजिए, आगे नहीं ले जा सकते, है ना। तो देखिए हर जगह हम आदेशों का पालन कर रहे हैं, जब हम चल रहे हैं तो आदेशों का पालन कर रहे हैं,
ठीक इसी प्रकार से जब हम भगवत धाम के लिए बैग पैक कर रहे हैं और चलने का हमको है, फिर आदेशों का पालन करना, ठीक है। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से चलिए। नहीं तो आप बैग पैक किए हुए हैं, क्या होगा कि आप अंतिम में काउंटर तक पहुंच जाइएगा, सब कुछ कर आके पहुंच गए, और वहां पे फ्लाइट वहीं पे टेक ऑफ होती है ना। वहां पे जब एंट्री खुलता है ना गेट, उस समय पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे एंट्री भी करानी है। हम वहीं पे बैठे हुए हैं, पता चला फ्लाइट आपके सामने से उड़ गई, भगवत धाम की फ्लाइट आपके सामने से उड़ गई, आपको पता ही नहीं है कि बैठना भी, कोई हमको बोला ही नहीं बैठना भी, सब कोई चेक करते करते चलेगा, है ना। तो आदेश अनुसार चलिएगा ना, बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो है ना, कभी ना कभी फ्लाइट उड़ जाएगी। तो अगर सरल सरल तरीके से चलना है तो यही है, प्रेम का मार्ग तो यही है, बाकी कष्ट का मार्ग और भी है। जिसको कष्ट का मार्ग स्वीकारना है उनके लिए बहुत सारे मार्ग, उनके लिए बहुत सारे, ठीक है। आई होप सभी को सब कुछ समझ में आया हो। किसी को भी कोई भी बात थोड़ी सी भी अगर कंफ्यूजन रहा है, बिल्कुल जितनी बार पूछनी है पूछ सकते हैं, परंतु पहले करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ, कल से 20 तारीख, कल 20 तारीख है ना, 20 से 25 ये 6 दिन के लिए मुझे कुछ कष्ट, 7:30 से 9:30 मेरा कुछ कार्य होते रहे, ठीक है। तो चैतन्य चैतामृत क्लास 15 मिनट पहले स्टार्ट होगी, 7 बजे स्टार्ट होगी, 7 से 7:30 होगी। और हमारी ये क्लास श्रीमद् भागवतम की जो 9 बजे स्टार्ट होती थी, वो 9:30 बजे स्टार्ट होगी। 9:30 से आप लोगों से पूछा कितने बजे तक एक्सटेंड किया जाए, अधिकतर लोगों ने बोला 10:15, तो 10:15 बजे तक होगी, ठीक है। बाकी कोई अगर चेंज करना चाहे तो शायद पोलिंग में चेंज भी कर सकते हैं, देख लीजिए आप लोगों को चेंज करना है तो कर दीजिए। और जितना भी टाइम लॉस होगा, 6 दिन में जितना टाइम लॉस होगा वो आगे चल के कवर किया जाएगा। मैं एक भी मिनट अपनी तरफ से बर्बाद नहीं करने देता। हाँ, जो समय बीत गया वो तो वापस कभी नहीं आ सकता, परंतु हम लोग प्रयास करेंगे उतने समय तक। हाँ, भगवान के बारे में भगवत ज्ञान हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो मैं बिल्कुल भी एक मिनट भी आप लोगों का बर्बाद नहीं करना चाहता, और सबको दृढ़ता से भक्ति करते रहे, मैं यही चाहता हूँ। बाय द वे, मेरे को एक कन्फेशन भी था, चैतन्य चैतामृत क्लास में बता दिया था, सेम यहाँ पे भी बताना था, वो भी बता देंगे। परंतु पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो तो डेफिनेटली पूछेगा कन्फेशन के बाद। ओके, ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरित की जय जय सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण everyone, हरे कृष्ण। तो कन्फेशन बस इतना ही है कि जैसा पिछले हफ्ते भी शायद हुआ है ना, जल पाना पड़ गया, तबीयत खराब होने का आशंका था,
आज भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ही अनकंफर्टेबल, सांस का फूलना, बहुत ही अजीब-अजीब चीज़ें हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि तबीयत खराब हो रही है। उसको बचाने के लिए बिल्कुल आफ्टर सनसेट आफ्टर सनसेट जल पाया। तो प्रयास था निर्जला, परंतु देखिए हमारे लिए हम क्या चाहते हैं, हम क्या नहीं चाहते वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कृष्णा के नाम का प्रचार हो, कृष्णा की सेवा अच्छे से करें, है ना? अगर वो जिद में देखिए जब तक सक्षम है तब तक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। परंतु अगर वो जिद हो जाए, नहीं मैं तो करूँगा, परंतु उसके कारण नाम जप अच्छे से नहीं करें, उसके कारण लोगों को भगवान के बारे में अच्छे से नहीं बताएँ, उसके कारण हम कृष्णा की सेवा अच्छे से नहीं करें, ये स्वीकार्य है, ये स्वीकार्य है। आप टॉलरेट तब तक कीजिए जब तक आप कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस बार पता नहीं स्थिति ऐसी ही रही। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं बाहर भी बहुत ज़्यादा था, स्वेटिंग बहुत थी। एनीवेज़ यही 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 कन्फेशन था, ठीक है। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएँ हों, कहीं से भी कुछ भी क जानना चाहें, प्लीज़ अनम्यूट कीजिए, पूछिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कुछ भी पूछना है, आज कुछ नया जाना अच्छा है। नया क्या? एक्चुअली में मालूम है क्या? ये कोई भी नहीं स्वीकारता, कोई भी नहीं जानता और कोई भी नहीं बताना चाहता। और अगर सपोज़ कीजिए, आप विग्रह सेवा में ही अपना पूरा सर्वस्व मान लिया, सर्वस्व है भी, परंतु मान लिया कि इनके ऊपर कुछ नहीं है, तो फिर भक्ति क्यों कीजिएगा? भगवान धाम क्यों जाइएगा? वो कंफर्टेबल हो जाइएगा ना, जैसा हम भौतिक जगत में कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, है ना? भौतिक जगत में कभी भी कंफर्टेबल नहीं होना, परंतु हम मालूम है अलग-अलग तरीके से कंफर्टेबल होना चाहिए, है ना? तो अपने आप को फिर इसी जगत का स्थित कर लीजिएगा। हम तो यहीं पे बहुत खुश हैं, हम यहाँ पे नहीं निकलना चाहते, है ना? तो वृंदावन में भी कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं, ऐसा थोड़ी ना रेसिप्रोकेट नहीं करते, परंतु पूर्ण रूप से रेसिप्रोकेट नहीं करते, पूर्ण रूप से 100% वृंदावन में ही है कृष्ण, परंतु हम उनसे आत्मीय संबंध तो नहीं बना पा रहे, हम उनका पैर पकड़ के तो नहीं खेल पा रहे हैं, हम उनके साथ तो नहीं चल पा रहे, तो यहीं पे है, हमको दिख तो नहीं रहे, हमारे बगल में बैठे हैं, पर दिख तो नहीं रहे। सेम, हरे कृष्ण, यस, हरे कृष्ण, यस यस, कोई बात नहीं, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कोई जिज्ञासा है, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात जाने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आई होप सभी को समझ में आए। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है। हम्म, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक्चुअली में बहुत लोग हैं ना लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, मालूम है क्या? सच बता रहा हूँ। और मेरे को उनसे कोई दुर्भावना नहीं है, परंतु वो मालूम है क्या सोचने लग जाता है, लड्डू गोपाल ही सर्वस्व, और इसके बाद मेरे को कुछ नहीं चाहिए। देखिए ये भाव ये रखना एकदम एकदम अच्छा है, परंतु हमको कृष्णा से आत्मीय संबंध चाहिए। क्यों? गुरु ने बोला है कि हमको आत्मीय संबंध पुनर्स्थापित कर, गुरु ने बोला। हम तो प्रेम में डूब करके हम कुछ भी सोच लेंगे, कुछ भी करने लग जाएंगे। कृष्णा तो रेसिप्रोकेट करेंगे, है ना? परंतु फिर कुछ भी सोचने लग जाएंगे। हम में तो मलिनता है, हम तो कृष्णा को पूर्ण रूप से
उनसे उनका आत्मीय संबंध नहीं देख पा रहे, मलिनता की स्थिति में हम वही सोचने लग जाएंगे, हम वही डूब जाएंगे। इसीलिए एक्चुअली में पूर्ण रूप से क्या कारण है ये तो कभी भी कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने प्रकट नहीं किया, परंतु कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए कभी भी प्रमोट नहीं किया, शायद इसीलिए आप उसी में डूब जाइएगा और फिर सोचिएगा। आप कीजिए, आप सेवा कीजिए, परंतु सेवा करते हुए हमेशा गुरु मुखा पद्म वाक्य, गुरु जो बोला है वही करेंगे, गुरु ने जो बोला है वही करेंगे। आप कीजिए, सब कीजिए, परंतु फिर ये भूल मत जाइए, ये मत भूल जाइए। अब हम सोचते हैं ना मेरा तो डायरेक्ट संबंध है कृष्णा से, उसके बाद सब भूल जाते हैं। इतना बड़ा अहंकार आ जाता है, फिर तो हम उस अहंकार में ही स्थित हो जाते हैं। हम हैं और कृष्णा है, अब कौन, गुरु कौन? फिर गुरु के कहे भगवत धाम तो नहीं जा सकते, फिर आप आत्मीय संबंध तो स्थापित नहीं कर सकते। आई होप सभी को समझ में आए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात, और एक्चुअली मैं आज बहुत डिफिकल्ट भी था, ये बात को कर पाना भी बड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कृष्णा नहीं है, या राधा रानी महारानी नहीं है, या गौड़ निताई नहीं है, वही है गौड़ निताई, परंतु हम नहीं देख पाए। तो हमको पूर्ण रूप से देखने के लिए वो लोक जाना, वो लोक जाना बिल्कुल जाना। हम यहीं पे नहीं रहेंगे, हमको उस लोक भी जाना। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है। नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। लेट ज्वाइन करना सही बात नहीं, बहुत गलत बात है। और एकादशी के दिन लेट ज्वाइन करना तो महाअपराध, बहुत गलत। कुछ भी कीजिए, सही टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, एकादशी की महिमा मात्र सुन लेने से, आप देखिए, समझिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों करता हूँ। एकादशी के लिए सभी डिवोटीज आकर के बैठते हैं, कोई डिवोटी शेयर कर रहा है, कोई डिवोटी रीड कर रहा है। अब बताइए, जो डिवोटी शेयर कर रहा है उनकी कृपा मिल रही है, जो डिवोटी रीड कर रहा है उनकी कृपा मिल रही है, गुरु कृपा मिल रही है, फिर कृष्णा कृपा मिल रही है। अब बताइए, ये सबको त्याग करके आपके पास कोई और भी कार्य है क्या? इसीलिए बोलते हैं जब एकादशी है तो चुपचाप आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी, ठीक है। इस बार गलती होगी, अगली बार से आप पूरा प्रयास कीजिएगा कि एकादशी के दिन कुछ गड़बड़ ना हो। देखिए अभी क्या गलती हुई मेरे को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस इससे फर्क पड़ता अगली बार गलती, अगली बार गलती पूरा पूरा कोशिश की, अगली बार कभी गलती। बाकी दिन ज्वाइन लेट किया, कुछ काम आ गया, ठीक, एकादशी के लिए पूरा कोशिश। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कोई बात नहीं। फिर से डांट क्यों पड़ रही है वो जानना इंपॉर्टेंट है, डांट पड़ी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों पड़ रही है, क्या हो गया, क्या क्या ऐसा बात होगी, वो जानिए, बहुत important। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की और की कोई जिज्ञासा, कुछ है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं बोलना। यस, सभी को सारी बातें स्वीकार्य है, सारी बातें स्वीकार्य है, तो फिर जो बोल रहे हैं वो काम नहीं। फिर उसके बाद फिर ये नहीं हो सकता, स्वीकार्य तो सब, आपने जो बोला हम सब स्वीकार करते हैं, सारा बात सही बोली, परंतु हम करेंगे अपने मन से, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये विकल्प नहीं, ये विकल्प नहीं। स्वीकार्य है तो फिर जो बोल रहे हैं वो
बोल रहा हूँ। और नहीं स्वीकार्य है तो साफ-साफ बता दीजिए, ये रहा मेरा, यहाँ पे मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे हमको थोड़ा नहीं समझ में आया। ठीक है? तो आई थिंक सभी को सारी बातें स्वीकार्य है। थोड़ा-सा भी किन्हीं को कोई भी जिज्ञासा नहीं है, कुछ भी समझने की इच्छा नहीं है। ठीक है? चलिए कीर्तन सुनते हैं और कीर्तन 12 बजे तक चलना चाहिए। चलिए कीर्तन स्टार्ट करते हैं और ऐसे कीर्तन से स्टार्ट करते हैं कि आप हिलने का कोशिश करें तो आपको लगेगा क्यों हिल रहा है। चलिए, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कीर्तन सुनते हैं, 12 बजे तक कीर्तन चलेगा। मेरा पीठ बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं कैमरा ऑफ कर दूँगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।